میں جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پی رہی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ، اور پھر افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیات ہے اس کو نہیں بول رہے۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ سورت الصف کی آیات ہے، آپ بول رہے سیسا پی رہی دیوار۔ میں آپ سب کے سامنے آج کچھ باتیں درد دل سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دست بستہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو میں مخاطب آج نہیں ہونا چاہتا، جنگ کے حالات ہیں، عام دن ہو تو ان کو بتایا جائے کہ فقہ کے اندر دار الکفر، دار الاسلام اور دار الحرب کی بحثیں کیوں ہیں؟ اسی لیے جو آج آپ کا رویہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، اسی لیے فقہ کے ابواب میں یہ بحثیں موجود ہیں۔ اور دار الکفر میں رہنے کی جو شرائط ہیں، دار الکفر میں کسی مسلمان کے رہنے کی کچھ شرائط ہیں۔ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اور مانتا ہوں کہ مجبور ہیں، لیکن دار الکفر میں رہنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، مسلمان دار الکفر میں جن 6 وجوہات پہ رہتا ہے ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہ دار الکفر میں رہ کے اگر اسلام کے تمام تر اراکین کے اوپر عمل کی اجازت نہیں مل رہی تو ہجرت کر جائیں گے، ورنہ یہاں پہ اسلام کی ایک نئی ریاست کو بنائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے تقاضا یہ تھا کہ ہندوستان کے قلب سے کئی نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آتی، لیکن افسوس ہے وہاں کے بعد مسلمان پھر وہی بات ہے، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اس کسائی اور قصاب کے ہاتھوں گجرات میں ہم نے مسلمانوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ مجبوری اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اپنے ایک سیکولر اور دار الکفر میں، پوری دنیا کو پتا دار الکفر ہے، ہندوستان کو کوئی دار الاسلام کہہ سکتا ہے؟ دار الکفر ہے، شرک کا گڑھ ہے، شرک کا اڈا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندو جس نام سے اس خطے کو پکارا وہ حدیث بھول گئے؟ رسول اللہ نے کہا 2 گروہ قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، 2 گروہ جن میں سے کسی ایک کے اوپر کوئی ایک لشکری بھی جس کا جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان 2 گروہوں میں ایک گروہ وہ ہے جب ہندوستان کے اوپر مسلمان حملہ کریں گے اس گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ غزوہ ہند، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ آئے گا اور جب مجھے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو میں اس جنگ میں شامل ہوں گا، اگر مر جاؤں گا تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاؤں گا اور اگر بچ جاؤں گا تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ واحد لشکر، رسول اللہ کی زندگی میں ایسے لشکروں کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ واحد لشکر جس کا ہر لشکری جنتی ہے، اگر شہید ہو جائے جنت میں جائے گا، شہادت نہ بھی ملے تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، وہ لشکر ہے جو اس شرک کے اڈے ان مندروں کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور یہ ایک نہیں ہے، یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو غزوہ ہو گیا، حضرت عمر نے جسوس بھیجے تھے، حضرت عثمان کے دور میں۔ وہ لشکر جو حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اور باضابطہ جو پہلی فتح ہوئی حضرت علی کے دور میں اس ہند کے علاقے میں، اور اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں محمد ابن قاسم کا سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، بھرپور طریقے سے حملہ ہوا، یہ سارے لشکر غزوہ ہند میں شامل ہیں۔ اور یہ سارے ہی نہیں شامل، سلطان محمود غزنوی جس وقت سومنات کے اوپر حملے کرتا تھا تو اپنی قوم کو یہ حدیث بیان کیا کرتا تھا کہ یہ غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند ایک نہیں ہے، غزوہ ہند تب تک جاری رہے گا جب تک ہند کا نام و نشان مٹ نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ مٹے گا تو غزوہ ہند سے مٹے گا اور مٹ جائے گا۔ اور یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، 1400 سال تک، آپ 1200 لگا لیں، ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ جو اب برطانوی سامراج نے کسی بھی طرح ہندوستان کے اوپر ہندوؤں کی اس حکومت کو قائم کیا جو اس بنیاد پہ بنی تھی، یہ سیکولر ریاست ہے، آج متعصب ہندوؤں کا وہاں پہ اقتدار موجود ہے، ابھی بھی یہ دار الکفر نہیں ہے اور ابھی بھی یہ غزوہ ہند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستانیوں کو نہیں پوری امت کو یہ بشارت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کیا ہند رسول اللہ کے دور میں موجود تھا؟ جی ہاں، رسول اللہ کی حدیث میں ہند اور سندھ کا لفظ بھی موجود ہے، سندھ کا بھی موجود ہے، ہند کا بھی موجود ہے، بلکہ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے
शक्क कब्र का मौजज़ा अपनी आंखों से देखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बर्तन भेजा और सही रवायात के अंदर है उसके अंदर अदरक था, अदरक यहाँ की सौगात। रसूलुल्लाह की बारगाह में जब पहुंची तो रसूलुल्लाह ने उस अदरक को टुकड़े टुकड़े किया और अपने सहाबा को खिलाया। और इस बादशाह ने रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह के ऊपर इस्लाम और ईमान को कबूल किया। हिंदुस्तान का था, हिंद मौजूद था, और जिस तरह हिंद मौजूद था और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाला हर लश्कर जन्नत की इस बुशारत। और ये एक हदीस नहीं है, ये एक तवील अलग बाब है, लेकिन आपके सामने बातें कुछ और रखनी है मजीद भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये हदीस पहले भी आपके सामने रखी है, गुज़िश्ता खुतबे में भी रखी है, मम माता वलम यगदु वलम युहद्दिस नफ्सहु बिलगदवी माता अला शोबतिन मिन निफाक। जो बंदा मर जाए और उसने कभी भी अपने आप को जंग के लिए काफिरों के साथ तैयार न किया हो, वो निफाक की हालत में मरा। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए, जंग की उम्मीद और आस भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जब जंग मुसल्लत हो जाए तो रसूलुल्लाह का फिर फरमान है कि जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। एक मुसलमान का और एक काफिर का यही फर्क है, यही फर्क है, यही बुनियादी फर्क है कि हमारे नजदीक मौत के बाद अब्दी जिंदगी है और हमारे नजदीक शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। ना माले गनीमत, ना किश्वर कुशाई, माले गनीमत मतलूब नहीं है, और ना सरहदों को फैलाना मतलूब है, शहादत मकसूद है, शहादत मतलूब है। वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। बताइए, हमारा अकीदा यह है कि शहीद हो जाएंगे तो जिंदा रहेंगे हमेशा के लिए, और ऐसी जिंदगी मिलेगी कि मरते साथ अल्लाह रिज़्क भी देगा और तुझे और मुझे अंदाजा नहीं कैसे देगा। और बाद में उसका जिक्र भी फरमा दिया, इधर खून का कतरा नहीं गिरता, उधर परिंदे के कालम में रूह जन्नत में रिज़्क खाना भी शुरू कर देती है। अभी खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरता, शहीद फी सबीलिल्लाह का हर गुनाह माफ हो जाता है। और रसूलुल्लाह ने कहा हर इंसान का अमल मुनक़ते हो जाता है, खत्म हो जाता है, फौत हुआ खत्म हो गया। मगर वो हदीस ज़हन में लाइए, इस्तिस्ना मौजूद होता है। अगर उसका बेटा उसके लिए दुआ कर रहा है, अगर माल है, अगर उसने कोई नेकी का काम छोड़ा, मस्जिद वगैरह, कुरान का नुस्खा तो उसके बच्चे पढ़ते हैं या मस्जिद में नमाजें होती हैं, तो वो सदका जारिया जारी रहेगा। लेकिन यहां पे देखिए कितनी अजीम हदीस है, कितनी अजीम, कि हर शख्स का अमल मुनक़ते है मगर शहीद फी सबीलिल्लाह जिस हालत में मरा है, हर रोज वो अजर उसके खाते में डलता चला जाता है। हर रोज वही अजर उसको मिलता चला जा रहा है और कब्र के आदाब से मुकम्मल महफूज हो जाता है। बताइए, आप और मैं मुसलमान हैं, और मैं ये पाकिस्तान के मुसलमानों को भी कहना चाहता हूं, हमारा तर्ज अमल भी हकीकत में यही, आज हम जिस तर्ज अमल का पूरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि अरब ममालिक हमारा साथ देंगे, तुर्की हमारा साथ देगा, मुसलमान 57 इस्लामी रियासतें हमारा साथ देंगी, चाइना जो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान है वो हमारा साथ देंगे, तो फिर याद रखिए बात तलख है लेकिन बात हकीकत के ऊपर मबनी है कि कभी भी किसी भी मुस्लिम रियासत का किसी भी काफिर रियासत से टकराव हो जाए तो काफिर रियासत का साथ देना इस्लाम में जायज नहीं है। और ये जायज अफगानिस्तान के वक्त भी नहीं था, अफगानिस्तान के वक्त भी नहीं था, उस वक्त भी चाहिए यही था कि पाकिस्तान के मुसलमान और दुनिया भर के मुसलमान अफगानिस्तान का साथ देते। यही इस्लाम है, यही दीन है, यही शरीयत है। आप आज देख लीजिए, अगर वतनीयत ही सबसे बड़ा बुत है तो फिर भारत के मुसलमानों से हम ये मुतालबा ना करें कि कम से कम खामोश हो जाइए, कम से कम गैर जानबदार हो जाइए, कम से कम दारुल कुफर के जो मसाइल हैं उनको पढ़िए। आप जानते हैं, आप उलमा हैं, आपको पता दारुल कुफर में रहने की शराइत क्या है, और आपको पता दारुल कुफर में रहते हुए किसी भी मुसलमान के खिलाफ आप तलवार नहीं उठा सकते। लेकिन ये बात हमें हमेशा के लिए अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। और जिस तरह फलस्तीन के साथ आप और मैं किस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर इदारे यकजहती करते हैं, सिर्फ इस्लाम की, हम फलस्तीनी हैं नहीं, लेकिन हमारा उनका ताल्लुक इस्लाम का ताल्लुक है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं, एक दूसरे की मदद करना। और आज मैं और आप तो इस बारे में डिस्कशन करते थे कि फलस्तीन कैसे जाएं, इसराइल कैसे जाएं। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे यह मौका दे दिया, इसराइल और भारत को आपके सामने आपके खित्ते में ला खड़ा किया है। और इस वक्त कौम को जिन अमूर की जरूरत है उनमें से सबसे पहला अमर यही है कि हर मुसलमान पाकिस्तान का 24 करोड़ मुसलमान
अगर मिल जाए, अल्लाह की कसम, भारत इसराइल की कुव्वतें जमा हो जाएं और अगर ये 24 करोड़ मरने का अदम कर लें तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत। ये पहला जज्बा जो आज पाकिस्तान के अंदर बेदार करने की जरूरत है। ये 24 करोड़ फौजियों का मुल्क है। ये 8-10 लाख की बातें भारत हमें ना बतलाए, हम तुम्हें बतलाते हैं कि ये 24 के 24 करोड़ पाकिस्तानी फौज हैं और पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। हां, इनमें से 1%, आधा % वो मोमबत्ती माफिया, वो इंसानी हकूक के चैंपियन, वो आपको, अब मैं उनके बारे में क्या कहूं, हालत जंग में हम, वो एनजीओज, वो औरत मार्च वालियां, वो आपको पूरे मुआशरे से गायब नजर आएंगी और हो सकता है अक्सरियत मुल्क से फरार भी हो चुकी हो। लेकिन मेरा और आपका हमीर इस वतन से, इस मट्टी से उठा है, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क की मट्टी से उठा है। हम इस मुल्क से फरार नहीं होंगे, हमारे जनाजे भी इसी वतन में पढ़ाए जाएंगे और हम मौत से नहीं डरते। और बंदा मोमिन मौत से नहीं डरता। कोई मोमिन बुज़दिल हो सकता है, उसको भी आपने तकवीयत पहुंचानी है, उसके दिल को भी मजबूत करना है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद मारकूने भी जाना है। बिस्तर पे एड़ियां रगड़ने से बेहतर है उस शहीद की मौत मर जाके जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने कहा जन्नत के आला दर्जे मिल जाएंगे। अल्लाह की कसम, हिंदुस्तान से जंग लड़ने वाला हर मुसलमान जहन्नुम से आजाद कर दिया जाएगा। ये मेरी बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। वो लश्कर जहन्नुम से आजाद है। आप चाहते नहीं है कि उस लश्कर के साथ हो जाएं? जिस वक्त इंडिया और हिंदुस्तान के साथ जंग छिड़ जाएगी, आप अगर किसी पाकिस्तानी फौजी को खून देंगे तो आप भी उस लश्कर का हिस्सा हैं, माल देंगे उस लश्कर का हिस्सा है, दुआएं करेंगे उस लश्कर का हिस्सा है। और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको उस लश्कर का हिस्सा बनाए। और पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह ताला ने अगर ये मौका फराहम किया, मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम बातें हैं। जंग के हालत में मैं और आप जंग की हालत में, लेकिन अफसोस और दुख की बात है आज जंग की हालत में होने के बावजूद सियासी जमातें अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग पे लगी हुई है। हालत है जंग में कौम का बयानिया वो होता है जो सिपा सलार का बयानिया होता है। पहली बात यह भी याद रख लीजिए, जमहूरी मुल्क है, सियासी जमातों का इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन यह इख्तलाफ सोशल मीडिया के ऊपर इस अंदाज में पेश करना यह बड़ा रकीक और बड़ी दुख देने वाली पोस्ट है। लोग हमें सेंड करते हैं कि ये देखें जी, ये पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं, ये देखें जी नून लीग के लोग ये कह रहे हैं। तोहमत लगा के मां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे वतन फरोश को मर जाना चाहिए। आज हालत जंग के अंदर आप पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक जुमला भी बोलेंगे आप पाकिस्तान के गद्दार हैं। क्यों? हालत जंग है। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, सियासी मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, लेकिन आज वक्त यह है कि पाकिस्तानी फौज का जो बयानिया है, पाकिस्तानी फौज के सिपा सलार का जो बयानिया है, वो 24 करोड़ अवाम का बयानिया हो। ये ना देखिए, और मैं मुजम्मत करता हूं राना सनाउल्लाह के बयान का। वो कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं है, वो किसी पार्टी का मंशूर हो सकता है। इस वक्त हमने किस बयानिए पे नजर रखनी है? फौज के बयानिए के ऊपर। और जिस वक्त कोई ऐसी इतला हम तक पहुंचे कि फलां जगह हमला हुआ है, रज़ाकराना तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को फौज के शाना बशाना मदद के लिए 3-4 काम करने बड़े जरूरी। एक, जिस वक्त हमें इतला मिले कि सीएमएच हॉस्पिटल्स के अंदर खून की जरूरत है, तो पाकिस्तानी कौम की लाइनें उन अस्पतालों के बाद नजर आनी चाहिए। जाएंगे इंशाल्लाह खून देने के लिए, अगर हमें पुकारा गया खून देने के लिए तैयार है। और फिर रजा कराना तौर के ऊपर ये जो फेक न्यूज, फेक खबरें, अल्लाह माफ करे, इंडियन मीडिया का भी बंदा क्या कह सकता है, वो तो उन्होंने अपने बहरी जहाज लाहौर की बंदरगाह पे खड़े कर दिए। लाहौर की बंदरगाह पे इंडिया नेवी आ चुकी, अंदाजा लगाएं। ये मदहका हेज मीडिया